Good morning everyone. I am Mrs. Priyanka Gupta and I welcome you all, and I am going to teach subject biology of class 9th. Chapter 3rd, improvement in food resources is going on, and this is the fourth part of the video. Now in the third part we have discussed about the topic that is crop production management. Now in the fourth part we are going to discuss about the topic that is crop protection management. क्रॉप प्रोटेक्शन मीन्स क्या होता है, जब फार्मर्स अपने क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो हाउ दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप. तो नाउ दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इन क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. नाउ इन दिस द फर्स्ट टॉपिक दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द टर्म वीड. वीड मीन्स क्या होता है, अनवांटेड प्लांट दैट ग्रोज अलॉन्ग विद द क्रॉप्स, दैट इज कॉल्ड द वीड. जो भी अनवांटेड प्लांट होते हैं जो फार्मर्स ने नहीं ग्रो किया अपने क्रॉप के साथ, तो उनके साथ वो अपने आप ग्रो हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द वीड. तो अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप्स, दैट इज कॉल्ड द वीड. क्लियर. नाउ फॉर एग्जाम्पल विल टेक xanthium. xanthium is what? xanthium is the type of weed. Clear. तो xanthium is a type of weed which grows along with the crop. ये अपने आप ग्रो हो जाते हैं, इसको फार्मर्स लगाते नहीं, अपने आप ये क्रॉप्स के साथ ग्रो होते हैं. तो दिस इज द अनवांटेड प्लांट. तो इसके लिए फार्मर्स को क्या करना होता है, दे हैव टू रिमूव द अनवांटेड प्लांट फ्रॉम देयर फील्ड सो दैट देयर क्रॉप्स कैन बी ग्रो इन अ बेटर वे. क्योंकि अगर वीड्स ग्रो होने लगेंगे तो वीड्स क्या करेंगे, जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं सॉइल के, वो वीड्स ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करने लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करने लगेंगे. तो जो प्रॉपर जो क्रॉप्स जो फार्मर्स ने लगाए होंगे तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा. इसीलिए क्या करना होता है, फार्मर्स को अपने फील्ड में से जो भी उनको अनवांटेड प्लांट दिखता है जो अपने आप ग्रो हो जाते हैं, उसको क्या करते हैं, दे हैव टू रिमूव दैट. ठीक. तो दिस इज कॉल्ड द वीड. एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनवांटेड प्लांट फ्रॉम द फील्ड, दैट इज कॉल्ड द वीडिंग. क्लियर. नाउ मूविंग फर्दर, नाउ नेक्स्ट वन इज द पेस्ट. अगेन पेस्ट इज व्हाट, पेस्ट कैन इन्फेक्ट द क्रॉप्स. So again this is the very challenging thing for the farmers to protect their crops from the pest, because pest is the different type of, you can say different type of viruses or different type of bacteria, they can attack the crops. So what the farmers can do, farmers can spray the pesticides in their field so that their field can be safe from the attack of different type of pesticides. Clear. Pesticides, now pesticides hota kya hai, what is pest? Pest is a type of you can say germ that can attack on the plant. And pesticides क्या होते हैं, pesticide is the type of chemical which is easily available in the market, जिसको कि farmers use करते हैं अपने field में spray करने के लिए, जिससे कि जो उनका crop है वो क्या रहे, safe रहे, और जो germs हैं वो kill हो जाए, या different type के जो bacteria viruses जो होंगे वो kill हो जाएंगे, बट उनका जो क्रॉप रहेगा फार्मर्स का वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा. तो पेस्टिसाइड्स इज द टाइप ऑफ केमिकल which is sprayed in the field so that the crops can be saved from the attack of different type of germs, bacteria. Clear. Now see here, disease caused by bacteria, fungi and viruses. There are different type of disease which can be caused by bacteria, different type of bacteria, different type of viruses, different type of fungi. So there are different type of diseases. Now see here, to protect the crop from the different type of diseases, protect the crop from the different type of diseases, what the farmers do, they use the pesticides. Clear. They use the pesticides. As I told you here also कि pesticide is the type of chemical which can kill the different type of germs and viruses, attack of different type of germs and viruses you can say. तो यहाँ पे पेस्टिसाइड्स क्या है, तो पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स भी होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स भी होते हैं, फंजीसाइड्स भी होते हैं. अगर सपोज इफ इंसेक्ट्स का अटैक होगा क्रॉप्स पे तो इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना होता है. हर्ब्स पे अटैक होगा तो हर्बिसाइड्स का यूज़ करना होता है फार्मर्स को. फंगस का अटैक होगा, फंगस टाइप की डिजीज़ का अटैक होगा तो फार्मर्स को फंजीसाइड्स टाइप के केमिकल्स का यूज़ करना होता है. तो फार्मर्स व्हाट दे डू, दे स्प्रेड दीज टाइप ऑफ केमिकल्स इन देयर फील्ड so that they can protect their crop from the attack of these type of diseases. Clear. Now the last one, moving further, last one is the storage. This is also very important for the farmers you can say, because after the production of crop,
farmers they have, after the protection, farmers they have to keep the crop for some time. तो दिस कम्स अंडर द स्टोरेज प्रोसेस. स्टोरेज में क्या होता है, फार्मर्स के जो भी क्रॉप्स होते हैं, फार्मर्स उसको क्या करते हैं, अच्छे से पहले तो क्लीन करना होता है क्रॉप्स को, उसके बाद ड्राई करना होता है एट टेम्परेचर, सुटेबल टेम्परेचर. फिर अच्छे से ड्राई होने के बाद फार्मर्स क्रॉप्स को क्या करते हैं, दे हैव टू स्टोर द क्रॉप्स फॉर ड्यूरेशन, फॉर यू कैन से फॉर लॉन्ग टाइम. तो जहाँ पे भी फार्मर्स क्रॉप्स को स्टोर करते हैं तो उस पर्टिकुलर प्लेस को फार्मर्स को पहले से डिसइंफेक्टेंट करना होता है. डिसइंफेक्टेंट मीन्स कि वहाँ पे स्प्रेज, डिफरेंट टाइप के जो इन्फेक्शन, ये डिजीज़ वाले जो स्प्रेज हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, इन सब का स्प्रे करना होता है, सो दैट दे कैन स्टोर देयर फूड ग्रेन्स, यू कैन से, फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम. अदरवाइज अगर वो स्टोरेज करने से पहले डिसइंफेक्टेंट नहीं करेंगे उस पर्टिकुलर प्लेस को, तो वहाँ पे अगर वो क्रॉप्स रखेंगे, स्टोर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, उस क्रॉप्स में जर्म्स का अटैक हो सकता है, डिफरेंट टाइप के जर्म्स का अटैक हो सकता है. तो अगेन इन क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट दिस इज ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग फॉर द फार्मर्स to protect their crops from the attack of different type of germs. Hope this much is clear to you all. So keep on revising and thank you and have a nice day.